Sir, I am not able to do this. Cost of 15 pencils is given. Rupees Sir, 37 we 1 will by. divide. No, don't ask anything. The first statement is cost of 15 pencils is already given. Okay, rupees 37 37 and a half. Sir, cutting. We can write it. Huh? Sir, we will cut them. I'm doing now. Just understand it now. Now here what can be done? If this is in mixed fraction, now we have to make it in proper fraction. How can it be 37 into 2 first of all, and then plus 1? 37 2s are how much? 74, and 1 is 75 by 2. Okay. Now if you are given cost of 15 pencils like this, then cost of one pencil will be less or more? Yes. Less. So if it should be less, then we have to divide it. 75 by 2 divided by. Sir, वो point में आएगा आंसर. अभी तो तुम बोले तुम्हें आता ही नहीं है, यू कांट इवन ट्राई, एंड नाउ हर एक सेकंड में तुम बता रहे हो. सर वो आंसर तो पॉइंट में आ रहा, मेरे को लगा गलत है. अभी सुनो ध्यान से, आई विल बी गिविंग यू सम मोर क्वेश्चंस लाइक दिस, तब दिखाना अपना स्मार्टनेस. अभी समझ लो एक बार अच्छे से. नाउ 75 by 2 डिवाइडेड मींस इसको इनटू करके 1 by 15 लिखेंगे. इज दैट क्लियर? इतना करते हैं ना. यस सर. नाउ 5 3s are 5 1s are 5 5s are. Now again 3 1s are and 3 5s are. So it will be 5 by 2. You can write it 5 by 2. You can write it 2.5, or you can write it 2.5. सभी इसके आंसर है. And you have to write here rupees also. This much rupees, rupees, rupees. पॉइंट में आए चाहे नहीं, रैशनल नंबर ही ले आओ, कुछ तो लाओ. कम से कम 5 मार्क्स में 1 मार्क्स तो मिले. You will just say that I can't do it. इतना सिंपल. Have you written this? Can I clear this page now? Yes sir. Now try this one. Try means जरूरी नहीं कि तुम्हारा आंसर सही है, but you have to try at least. Sir. What's your answer? 63/2. Have you written like this? Yes sir. Five 6 are 30, 5 3 are 63 by 2 rupees. That's right. So understood this much? Yes sir. By what number should minus 44 by 9 be divided to get minus 11 by 3? Now try this one. So what's your answer? 3/4. By what number should this be divided? X divided by this or good evening. ऐसे होगा या इसका उल्टा होगा? By what number should this be divided, means X, to get minus 11 by 3? Or what we can write, minus 44 by 9
into 1 by x equal to minus 11 by 3. And if we take this x on the right side, then here it will be, and we can write here minus 44 by 9 will be as it is, minus 11 by 3 को left लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, divided by minus 11 by 3, or we can write it as minus 44 by 9 into 3 by minus 11. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 11 4 जा 44, 3 3 जा 9 इक्वल टू 4 by 3 आ रहा है. तुम्हारा 3 by 4 कैसे आ गया? जागृत, Yes, sir. how you got 3 by 4? इसको लिखो अच्छे से, समझो क्या गलत हो रहा है. ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये वाला तुमने ऐसे लिखा है कि नहीं, फर्स्ट वाला लाइन जो है, हैव यू रिटन दिस? Yes, sir. देन उसके बाद तो गलत नहीं होना चाहिए ना. सबसे ज्यादा मुश्किल होता है फर्स्ट लाइन लिखना. अगर वो लिख लिया तो उसके बाद तो सिंपली बस हमें केयरफुल होके लिखना है, दैट्स ऑल. आंसर सही आ जाएगा. Okay, sir. नाउ सपोज दिस इज नॉट डिवाइडेड, ये मल्टीप्लाइड होगा, तब क्या आंसर आएगा इसमें समझ लो. मैंने लिख दिया बाय व्हाट नंबर शुड इट बी मल्टीप्लाइड. ओके, ये नहीं है, तब करो सॉल्व. Sir, I am also sorry. हाँ करो. Sir, can you explain me multiplication? By what number should minus 44 by 9 be multiplied to get minus 11 by 3? बस पहले डिवाइड लगाया था, इनटू लगा देंगे. तो पहले तो तुम्हारा किया ना तुमने पिछला वाला क्वेश्चन. Yes, sir. देन इसमें क्या डाउट है? बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड टू गेट दिस? इसको सॉल्व नहीं कर सकते? कैन यू सॉल्व दिस जागृत? सर सेम होगा. सेम कैसे है? यहाँ डिवाइड था ना, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लाई. दोनों में डिफरेंस नहीं है. डिवाइड और मल्टीप्लाई तुम्हारे लिए दोनों सेम ही है. Sir, done. कितना आंसर है अभिजीत? Sir, minus 4 by 3. minus 4 by 3. 3. Okay, let us check. Here we want x, है ना? Okay, now let x be here only. उस साइड क्या हो जाएगा? minus 11 by 3 divided by minus 44 by 9, or we can write minus 11 by 3 into 9 by minus 44. माइनस माइनस तो कट जाएगा, 11 4 जा, है ना? now 3 3 जा, ये तो 3 by 4 आ रहा है. तुम्हारा minus 4 by 3 कैसे आया? अभिजीत, क्या किया तुमने? तुम्हारा ऐसा आंसर क्यों आया इतना गलत? By what number should minus 2 by 7 be multiplied to get 28 by 5? इसको ट्राई करो. Sir, done. हाँ, minus 98 upon 5. अभिजीत तुम्हारा हुआ? अभिजीत तुम्हारा कोई आवाज नहीं आ रहा है. Yes, sir. हो गया. Sir, same. हाँ तो बोलो ना, तुम्हारा आवाज ही नहीं आता. तुम्हारा कितना आंसर है?
Sir, minus 98/5. सेम आया. Yes, sir. हाँ तो अब समझ में आ गया ना. यस The product of two rational numbers is minus 16/9. Okay. If one of the numbers is minus 4/3, find the other. Try this one. आराम से सोचो क्या करना है. क्या आंसर आया? Sir, minus 64/27. minus 64/27. 27. जागृत, यस सर डन. क्या तुम्हारा क्या आंसर आया? सर 4/3 सर से. 4/3. यस सर. The product of two rational numbers is means is equal to in mathematics. ठीक है. If one of the numbers is minus 4/3 and there are two numbers whose product is, so x equal to what? Minus 16/9 divided by minus 4/3, or we can write minus 16/9 into 3/-4. Minus minus will cancel out. 4 4s are 16, 3 3s are 9, equal to 4/3. That's all. That's right. जागृत. अभिजीत का गलत है. तो अभिजीत तुमने क्या किया? जिस मैजिक से किया है तुमने कि गलत आ गया. क्वेश्चन समझ में नहीं आया? मिस्टर अभिजीत, आर यू देयर? Yes, sir. क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आया तुम्हें? Yes, sir. तो फिर how many pieces each of length 3 3/4 meter can be cut from a rope of length 30 meter. ट्राई कर सकते हो ना इसको, या पहले ही बताना पड़ेगा मुझे? डन सर. व्हाट्स द आंसर? 8 मीटर. 8 meter. अभिजीत, where are you? How many pieces each of length this can be cut from a rope of 30 meter? rope 30 meter का है, इसको डिवाइड करेंगे, है ना? यही किया है जागृत. यस सर. सर मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल लाइक फ्रैक्शन में भी किया. Means it is 30 divided by 15/4, or you can write it 30 into 4/15. 15 to the 30 equal to 8 meter. How your mathematics has improved today? You are doing all right, and Abhijit was doing it rightly in previous days. Today Abhijit is only silent. Don't know where he is. अभिजीत, आर यू देयर या छुप गए हो कहीं घर पे? Yes, sir. वहीं पे हो तुम?
Yes, sir. तो क्या तुमसे नहीं हो रहा? अगर एक रोप है मान लो 2 मीटर का, ठीक है, 2 मीटर्स का, ठीक है, और तुम्हें 1 मीटर के लेंथ का चाहिए तो कितने पीसेस में हो पाएगा? अगर हमें वन, तुम्हारा आवाज ही नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो पता नहीं। सर एक और बार। अगर 2 मीटर का क्लॉथ है, देखो ये 2 मीटर का क्लॉथ है ना, और तुम्हें 1 मीटर के क्लॉथ चाहिए तो कितने क्लॉथ इसमें से निकलेंगे 1 मीटर के सर 1 पीसेस? मीटर। 1 मीटर के 2 पीस निकलेंगे ना बाबू। यहाँ पे 1 मीटर का और यहाँ 1 मीटर, यहाँ पे हम कैंची लगाएंगे, कट करेंगे, तो 1 मीटर 1 मीटर के पीस निकलेंगे ना, 1 मीटर के 2 पार्ट। यस सर। तो क्या आंसर आया? 2। हाउ मेनी पीसेस? 2 पीसेस। तो कैसे आ रहा है? तो वी हैव टू डिवाइड 2 by 1। तो जो भी बड़ा है, बड़ा क्लॉथ है, मान लो 30 मीटर, 30 मीटर्स का, इसको हमें कट करना है। कितने पीसेस बनेंगे? तो 30 डिवाइडेड बाई जो एक पीस का साइज होगा, ठीक है। नॉर्मल में जैसे करते हैं वैसे ही करना है, बस ये रैशनल नंबर के फॉर्म में, दैट्स ऑल। ओके अगर सर। 30 मीटर का क्लॉथ है एंड वी वांट टू कट इट इन पीसेस ऑफ 10 मीटर ईच, ठीक है, हर एक कपड़ा जो हम काटेंगे 10 मीटर का होना चाहिए, तो कितने पीसेस कट पाएंगे? सर सर खाली सर सुनाई दे रहा है, और कुछ तुमने जो बोला वो कुछ सुनाई नहीं दिया। सर 10 पीसेस। अगर 10 पीसेस कहाँ से हो जाएंगे? 30 मीटर का क्लॉथ है, इसमें से 10 10 के कितने निकलेंगे? 3 ही निकलेंगे ना। 10 10 10 खत्म हो गया ना। मीन्स यू हैव टू कट इट यस सर। हियर एंड हियर, तो 10 10 मीटर का कट हो जाएगा, 3 पीसेस निकलेंगे। तो सो मीन्स वी हैव टू डिवाइड 30 by 10 इक्वल टू 3। तो तुम पता नहीं कितना 10 10 निकाल दे रहे हो पीस। प्रैक्टिकली सोचो ना, 30 मीटर का क्लॉथ है, उसमें 10 10 मीटर का पीस हमें निकालना है, तो 3 ही पीस निकाल पाएंगे ना 10 मीटर का। 10 10 10 30 हो गया ना 30। यस सर। तो फिर इसमें इतना डाउट क्यों है? इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है ये, सिंपल सा है। if 24 pairs of trousers of equal size can be prepared with 54 meter of cloth, ठीक है, what length of cloth is required for each pair of trouser? ट्राई करो क्वेश्चन को समझने का और फिर सॉल्व करो, ठीक है। Are done. हाँ, कितना आंसर आया? 4/9 meter. 4/9। अभिजीत हुआ तुम्हारा? सर मैं 24 pairs of trousers equal size can be prepared with 54 meter of cloth। हमें अब 1 पेयर केवल प्रिपेयर करना है, तो कम आएगा। तो जो भी 54 मीटर है ना, 24 पेयर्स के लिए हमें 54 मीटर ऑफ क्लॉथ चाहिए, है ना। सो फॉर 1 पेयर वी नीड 54/24 मीटर क्लॉथ, है ना, इक्वल टू, और ये हमारा 2 से हो जाएगा, 2 × 27, 2 × 12। नाउ 3 4 3 9 इक्वल टू 9/4 मीटर। हाउ यू गॉट 4/9 मीटर? देखो क्वेश्चन में जो भी फाइंड करना है दैट इज टू बी रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, लाइक व्हाट लेंथ ऑफ क्लॉथ, मींस ये रहेगा राइट साइड में, व्हाट लेंथ ऑफ क्लॉथ इज नीडेड।
for each pair, for one pair. So for 24 pair हम पहले लिखेंगे this much meter of cloth. So for one pair this much is needed. बस इतना ही तो सोचना है. Is it understood? Yes, sir. Sir, 54 we will write on the numerator. हाँ, why not? 24 पेयर का 54 मीटर क्लॉथ चाहिए. यहाँ हम वन पेयर कर रहे हैं, मीन्स 24 को हम कहाँ ले जा रहे हैं? राइट साइड में. 24 को राइट साइड ले जा रहे हैं तो 54 तो वहीं पे रहेगा ना जहाँ है. तो 24 नीचे जाएगा, 54 by 24 हो जाएगा. Okay, sir. If for suppose 2 pair of shoes, okay, you need 10 meter of cloth. तो 1 pair of shoes के लिए क्या होगा? 10 का आधा हो जाता है ना, 10 by 2 हो जाएगा ना, half of 10. तो ये क्या हुआ? 2 यहाँ पे चला गया राइट साइड में, डिवाइडेड बाई. Any doubt in this? 5. No, sir. Now I'm giving a homework, and 1000 times I have told that first you have to write the question followed by its solution, but still you are not doing that. So I will also not do my duty. It's your duty to follow the instructions of the teacher. I have told several times, first you have to write the question and below that you have to write its answer, but you are directly doing it. So today also I will be giving one homework, and let me see that you follow it or not. If you are following my rules or instructions, then only I am going to check that. Otherwise, there will be no use of sharing your answers. Okay. Okay, sir. So this chapter is over from my side. Now you have to practice as much as you can. But first step is to do the homework that I am sharing now. Okay, I will be sharing it on WhatsApp. That's all for today. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, welcome. Bye.